Hello everyone, my name is Suhani Acharya and today I am here to discuss about visualization of vector fields. So first we'll discuss what is computer graphics, then what is visualization, what is vector fields, and then we'll get into some um, vector field visualization techniques. And obviously बहुत बड़ा topic है, बहुत vast topic है, so we won't be able to discuss everything about everything. So बहुत basic level पे हम सब कुछ techniques को पढ़ेंगे. So what is computer graphics? So graphics is basically एक art of drawing picture on computer screens with the help of programming. So everything we see on screens, any type of screen, TV screen, computer screen, mobile phones, iPads, whatever. So everything we see on a screen is computer graphics, like कुछ भी videos, photos, text, emojis, anything. And it is done with the help of programming obviously, and it involves computations, creation and manipulation of data. So कोई भी data उसको pictorially एक screen पे represent करना is what visualization is, and what this field of study refers to as is computer graphics. So what is visualization? Visualization एक process है इन्हीं सब data को represent करने की on screens. So visualization is nothing. Visualization is generally basically the process of representing anything uh, in the form of images or data is what visualization is. So एक daily life example of a vector field visualization. These is the photo of how wind currents flow over India, and it is not something new, that it is not something that we have never seen. हम सब ने कभी ना कभी ये photos देखी in science books, on news, wherever. So it shows the magnitude, the direction basically of the wind current, कि wind यहाँ से यहाँ जा रही है. अगर मैं आपको like in normal conversation बोलूँ कि over मध्य प्रदेश wind comes from north and goes towards the east, so हम इतने अच्छे से visualize नहीं कर पाएंगे कि wind कहाँ से आ रही है और कहाँ को जा रही है. But if I show you this particular photo, then you can see कि wind north से आ रही है and south को जा रही है, sorry east को जा रही है. So the point is कि अगर मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, so it would be better and easier for you to understand if I show it to you pictorially, right? So वेक्टर और वेक्टर फील्ड क्या होती है? वी ऑल नो वेक्टर एंड वेक्टर फील्ड क्या होती है, हम सबने फिजिक्स में मैथमेटिक्स में पढ़ा है. सो वेक्टर एक मैथमेटिकल टर्म, एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होती है टू रिप्रेजेंट समथिंग दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. स्केलर इज अ क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड. Scalar is like speed and distance, and vector is displacement, force, and velocity, buoyancy, and whatnot. एंड वेक्टर फील्ड इज एक रीजन ऑफ स्पेस जिसमें उस वेक्टर का इन्फ्लुएंस है. लाइक मैग्नेटिक फील्ड इज अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे मैग्नेटिज्म का इन्फ्लुएंस है. एंड buoyancy is like, I don't know what the term for it is, but it has a particular field. Okay, so हाँ, इस वीडियो में हम इन पर्टिकुलर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इन पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. These are the techniques by simple some basic techniques by which we visualize vector data. फर्स्ट अप इज क्विवर प्लॉट. क्विवर प्लॉट एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है जो 2D डायमेंशन में वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है. इट डिपिक्ट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एट अ वेरियस पॉइंट्स इन फील्ड यूजिंग एरोज. तो इसका जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसा होता है कि एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि हर एरो की टेल कहाँ पर होगी, लोकेशन कहाँ पर होगी, जहाँ से स्टार्ट होगा. एंड यू एंड वी जो कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड, मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा इन वेक्टर्स का हर एक पॉइंट पर. सो जो एरो के प्रॉपर्टीज रहते हैं, एरो की जो डायरेक्शन होती है वो अलाइन करती है यू एंड वी कंपोनेंट से, जो इंडिकेट करता है कि वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ है. एंड एरो की लेंथ जो होती है प्रोपोर्शनल होती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड से. Quiver plot is used in fluid mechanics, electromagnetism, stress and strain analysis, like everywhere जहाँ पे magnitude और direction is very important.
So this is how a quiver plot looks like. This is the tail point, this point where it starts is tail point और ये x और y की वैल्यू देता है and the direction and the magnitude is what u and v gives. ये syntax है जैसे जिससे quiver plot construct हो सकता है using Python. So next up is cone plot. Cone plot एक 3D equivalent है quiver plot का. ये एक visualization technique है जिसमें जैसे quiver plot में 2D like arrows यूज होते हैं वैसे इसमें cones यूज होते हैं. इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई एंड जेड जो डिफाइन करते हैं लोकेशन बेस सेंटर जहाँ से कौन लाइक उस 3D स्पेस में जहाँ पे कौन होगा एंड यू वी एंड डब्ल्यू गिव्स द वेक्टर फील्ड आर द वेक्टर फील्ड कंपोनेंट. ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो इच पॉइंट पे क्या है. सो कौन की जो डायरेक्शन होती है वो हमें जो कोन की प्रॉपर्टीज होती है कि कोन का जो डायरेक्शन होता है वो अलाइन करता है जो हमारे वेक्टर की डायरेक्शन है उससे एंड कोन की जो लेंथ होती है वो अलाइन करती है. कोन की जो हाइट होती है वो प्रोपोर्शनल होती है वेक्टर के मैग्नीट्यूड की. इसको जियोफिजिक्स में यूज किया जाता है सेस्मिक वेव्स को रिप्रेजेंट करने में. मेटेरोलॉजी में यूज किया जाता है एटमॉस्फेयर में वेरिएशंस को रिप्रेजेंट करने में एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया जाता है 3D फ्लूइड फ्लो के पैटर्न्स को विजुअलाइज करने में. सो दिस इज हाउ अ कोन प्लॉट लुक्स लाइक. इसका ये सिंटेक्स होता है एंड ऐसे वो दिखता है कि 3D स्पेस में कोन जिसके ये बेस पॉइंट है एंड डायरेक्शन कोन की डायरेक्शन वो है जहाँ पे उसका वेक्टर पॉइंट जो है वो डायरेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट अप इज कर्व्ड ग्लिफ्स. सो कर्व्ड ग्लिफ्स जो रहते हैं वो कर्व डेटा को रिप्रेजेंट करने में यूज होते हैं. लाइक साइंटिफिक विजुअलाइजेशन में जो कर्व ग्लिफ्स होते हैं माइट रेफर टू यूजिंग एरोज और अदर सिंबल्स दैट आर देमसेल्व्स कर्व्ड टू रिप्रेजेंट अ डेटा जिसमें इनहेरेंट कर्वेचर हो. सो कर्व वेक्टर फील्ड्स को विजुअलाइज करने के लिए रिलेवेंट होते हैं जैसे कि जो डेटा पॉइंट्स है जिसमें वेक्टर से जो स्ट्रेट लाइंस अलाउ नहीं करते हैं जो उनका नेचर ही कर्व होता है तो ग्लिफ्स जो रहते हैं वो बेंट होंगे टू रिफ्लेक्ट दिस कर्वेचर. सो ये ज़्यादा एक्यूरेट विजुअल प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है. सो दिस इज हाउ कर्व्ड ग्लिफ्स लुक लाइक. जैसे कि हमारा जो वेक्टर है दैट डज नॉट अलाउ स्ट्रेट लाइंस जिसको रिप्रेजेंट कर सके. सो ये यूज किया जाता है. इट इज कर्व्ड शोज डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर फील्ड. नेक्स्ट अप इज स्ट्रीमलाइंस. नेक्स्ट अप इज स्ट्रीमलाइन. तो स्ट्रीमलाइंस जो होते हैं बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन टूल है वेक्टर फील्ड्स के लिए जो पर्टिकुलरली फ्लो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है. ये एक क्लियर और मोर इंट्यूटिव वे ऑफर करता है कि हमारे जो फ्लो का पाथ और डायरेक्शन क्या है हर एक पॉइंट में फील्ड की. सो इसका कंसेप्ट है कि स्ट्रीमलाइन जो एक वो कर्व लाइन है जो हमेशा टेंजेंट की फील्ड से टेंजेंट वेक्टर की फील्ड से टेंजेंट होती है. जैसे कि इमेजिन करो एक टाइनी पार्टिकल है जो फ्लो में फ्लोट कर रहा है तो जो स्ट्रीमलाइन रहेगी उसका पाथ ट्रेस करेगी जो वो पार्टिकल ओवर टाइम लेता है. स्ट्रीमलाइन जो है वो टिपिकली जनरेट होती है एल्गोरिथम्स यूज करके न्यूमेरिकली. ये जो एल्गोरिथम होती है सीड पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड इटरेटिवली फॉलो करती है जो वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन है हर पॉइंट पे उसको और जब तक एक सर्टेन स्टॉपिंग क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता है. जो स्ट्रीमलाइंस है वो ऑफन कलर्ड स्मूथ लाइंस रहती हैं. दिस इज हाउ स्ट्रीमलाइन लुक्स. ये सीड पॉइंट है एंड ये सिंटेक्स है स्ट्रीमलाइन का. ये लेस क्लटर्ड डेटा प्रोवाइड करता है. ज़्यादा फ्लो विजुअलाइजेशन में क्लैरिटी होती है एंड